My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing memory-based questions of general knowledge (GK) from last year XGMT examination. तो XGMT 2025 से we'll be discussing GK questions in this session. Start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel और साथ में also press the bell icon. You can also join our channel Mathological और can message me on Telegram at ADITYAKT. So हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और towards the end we'll be discussing the most beautiful question. ओके स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड बाय द सन टू जनरेट एनर्जी क्या है? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. आई बिलीव तुम्हें आंसर पता होगा इसका. द आंसर इज हाइड्रोजन. तो इन कोर ऑफ द सन कैसे एनर्जी जनरेट करता है? सन यूजेस हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है हीलियम में थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. Okay, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स बेसिकली दे कन्वर्ट इनटू हीलियम एंड इन सम अदर आइटम्स एंड बहुत सारा एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होता है. So that is how sun generates energy. Okay, that is the first question. Now, second one, who is the author of seminal book The Interpretation of Dreams? Carl Jung, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche या फिर Charles Darwin? The answer is Sigmund Freud, the father of psychology. Freud is father of psychology, and this book, The Interpretation of Dreams, is basically about dream psychoanalysis. Carl Jung wrote a famous book, The Man and His Symbols. थोड़ा कुछ भाई टाइटल में फर्क हो सकता है, बट द मैन एंड सिंबल्स या द मैन एंड हिज सिंबल्स. तो दिस इज द बुक बाय कार्ल जंग. फ्रेडरिक नीशे, द मोस्ट फेमस बुक इज दस स्पोक ज़रथुस्त्र. एंड मोस्ट फेमस बुक ऑफ चार्ल्स डार्विन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. Next question. In the year 2024, the government of India announced Bharat Ratna awards for 5 distinguished personalities. Who among the following was not one of the recipients? अब देखो क्वेश्चन को अपने हिसाब से लैंग्वेज दिया है, ठीक है. मे बी एग्जाम में ये पूछा गया हो कि हाउ मेनी भारत रत्न अवार्ड्स वर गिवन इन 2024, बट इसको सॉल्व करते हैं. तो देयर वर 5 अवार्ड्स गिवन इन 2024 एंड विच वन वॉज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ दैट? कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, रतन टाटा या फिर चौधरी चरण सिंह? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रतन टाटा बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव द अवार्ड in 2024. So this is the answer. Okay, Karpuri Thakur received it. He was ex-Bihar CM and socialist politician. MS Swaminathan is agricultural scientist and instrumental for Green Revolution. He is also called father of Green Revolution. Then Chaudhry Charan Singh, ex-Prime Minister of India and a farmers leader. तो 3 तो मिल गए, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह. फोर्थ वन वॉज LK आडवाणी, ex-deputy PM and Home Minister of India. And fifth, PV Narasimha Rao, another ex-prime minister and known for LPG reforms, LPG liberalization, privatization, globalization reforms के लिए. So these were 5 recipients of Bharat Ratna in 2024. Next question, which article of Constitution of India empowers the president to impose president's rule in a state if the constitutional machinery fails? So president's rule is imposed under the article 356. Article 370, the most famous article, ये तो पता ही होगा कि this has been abrogated now in August 2019 and this belong to J&K, special status for J&K. Article 352 is about national emergency and Article 360, this is about financial emergency. Next one, the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of which atmospheric phenomenon? ठीक है, यानी कि सनराइज से 2 मिनट पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है और सनसेट के 2 मिनट के बाद तक भी दिखता रहता है. तो विच इज दैट रीजन, विच इज द रीजन बिहाइंड, विच साइंटिफिक फिनोमेना इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस? The answer for this question is atmospheric refraction.
अब इसको डिटेल में समझेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, वहाँ पे और भी सारे के सारे बाकी प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट किसी और पे क्वेश्चन आए आगे तो वो भी तुम सॉल्व कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। विच फाइनेंशियल रेशियो measures a company's ability to pay off its short-term liabilities with its short-term assets? Answer to this question is liquidity ratio. This is used to measure a company's ability to pay off its short-term liability with its short-term asset. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, फॉर एग्जांपल कोई एक शॉर्ट टर्म का लोन लिया है, कोई चीज़ है आज हमें डिमांड है, आज हमें समाहू पे करना है, तो वो कैसे पे कर पाओगे? उसके लिए तुम्हें चाहिए एसेट्स जो कि लिक्विड हो, जो कि कैश हो या कैश में कन्वर्ट किया जा सकते हो जल्दी से जल्दी। तो दैट इज व्हाट लिक्विडिटी रेशियो इज अबाउट, कि हाउ मेनी ऑफ योर एसेट्स कैन बी लिक्विडेटेड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज अबाउट लिक्विडिटी रेशियो। यही सेम काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो, कि इन द लॉन्ग रन जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है उनको पे करने के लिए जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो सॉल्वेंसी रेशियोज के थ्रू देखते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट long-term obligations, paying off long-term liabilities. That is measured by solvency ratio. Profitability ratio is about your return on investment, कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितने प्रॉफिटेबल है। एंड एफिशिएंसी इज अबाउट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो नाम है वैसा ही, टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू जनरेट प्रॉफिट्स, दैट इज अबाउट एफिशिएंसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of a corporation, what does the term equity primarily refers to? The total debt, the ownership interest, the annual revenue, या फिर interest rate on loans? The answer is ownership interest of shareholders. So for a company, assets are equal to liabilities plus equity. The fundamental accounting principle, assets are equal to liabilities plus equity. ठीक है, तो जो भी तुम्हारे पास एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी के पास एसेट्स है, कॉर्पोरेशन के पास एसेट्स हैं एट प्रेजेंट, अगर वो सारे के सारे एसेट्स को कैश में ले ले, लिक्विडेट कर ले, सारे एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर ले, तो उस कैश से सबसे पहले क्या पे करेगी? जो लाइबिलिटीज हैं, जो भी लोन्स लिए हैं उसने, जो भी ऑब्लिगेशन है उसकी, तो सबसे पहले द कंपनी विल बी पेइंग लाइबिलिटीज। उसके बाद जो बच गया दैट विल बी पेड टू शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज वॉट इक्विटी इज। ओके, next one, which index is used in India to measure the average change in prices of goods at the wholesale level? The answer to this question is wholesale price index, WPI. There are three price indexes. One is PPI, then WPI, and finally CPI. PPI is producer price index, यानी कि प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उस पैसे में जो चेंज है दैट इज डिटरमाइंड बाय PPI. Amount received by producers for producing their goods and services, that amount, the fluctuation in that amount is captured by PPI, Producers Price Index. अब ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं ये मार्केट में आ गए, होलसेल मार्केट में आ गए, तो होलसेल मार्केट में एनी चेंजेस इन प्राइसेस आर कैप्चर्ड बाय WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये होलसेल मार्केट से जाएंगे रिटेल मार्केट में, तो एनी मार्केट प्राइसेस चेंज इन द रिटेल मार्केट इज कैप्चर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, ठीक है, तो WPI हमारा बेसिकली क्या चेक करेगा? इन्फ्लेशन चेक होगा इससे। GDP डिफ्लेटर इज बेसिकली टू डिफ्लेट द GDP, क्योंकि जो नॉमिनल GDP होगा हमारा, जैसे GDP कैलकुलेट होगा नॉमिनल GDP, दैट नॉमिनल GDP इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम है जो आज 100 रुपीज़ का है, अब नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन की वजह से 110 का हो गया। ठीक है, इसमें एक पार्ट इन्फ्लेशन का है और एक पार्ट उसकी वैल्यू बढ़ने का है। तो जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, जब हम उसको डिफ्लेट करते हैं, जब उसको रिमूव करेंगे GDP में से, उसके बाद ही हमें रियल GDP का वैल्यू पता चलेगा। तो रियल GDP इज बेसिकली नॉमिनल GDP माइनस इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को हम रिमूव कर पाते हैं GDP डिफ्लेटर से। एंड GDP डिफ्लेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ WPI एंड CPI। ओके, तो दैट इज व्हाट GDP डिफ्लेटर इज। नाम ही कह रहा है GDP को डिफ्लेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन का पार्ट रिमूव कर रहा है, और ये रिमूव करने के लिए हेल्प लेता है WPI एंड CPI के कॉम्बिनेशन की। Okay, next one. The depletion of the ozone layer, which protects Earth from harmful UV radiation, is primarily caused by which chemical compounds? Carbon dioxide, chlorofluorocarbons, methane, या फिर nitrous oxide? Answer to this question is chlorofluorocarbons, CFCs. CFCs contain chlorine, और जैसे ही ये CFCs UV रेज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो UV रेज के साथ इंटरेक्ट करके दे रिलीज क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन रिलीज होता है, दिस क्लोरीन इंटरेक्ट्स विद ओजोन, और ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। दैट इज वाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द बिगेस्ट रीजन फॉर दीज हार्मफुल, बिगेस्ट रीजन और
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है. नेक्स्ट वन, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? फिलिप कोटलर, हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर या फिर फ्रेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज पीटर F ड्रकर. ऑप्शन सी. फ्रेडरिक विल्सन टेलर, ही इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट. Also known for giving principle of functional foremanship. ठीक है, इतना तो याद रखो, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. पीटर ड्रकर इज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट इज हेनरी फेयोल. Sometimes he is also called father of management, otherwise father of classical management, that is Henry Fayol, because he gave 14 principles of management. And Philip Kotler is father of modern marketing. अब एग्जाम में ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट अभी ये जो ऑप्शंस लिए तुमको इस हिसाब से लिए ताकि बाकी भी जो इसके अराउंड और जो प्रिंसिपल्स हैं और जो लोग हैं उनके भी नाम रिकॉल हो जाए, उसको भी रिवाइज कर लें हम लोग शॉर्ट में. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. विच प्लानट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन अवर सोलर सिस्टम? मरकरी, मार्स, वीनस या फिर जुपिटर? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वीनस. वीनस का डे सबसे लंबा होता है. पहले तो तुम्हें डे और ईयर के बीच का फर्क पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि डे क्या होता है. फॉर एनी प्लैनेट डे होगा जिसमें कि वो प्लैनेट क्या कर रहा है, अल्टीमेटली दैट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, सॉरी, एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है. रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन तो हो गया, जबकि वो एक सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है या एक ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो वो तो हो गया रिवॉल्यूशन, यानी कि एक ईयर हो गया. एक रोटेशन कंप्लीट करना, ठीक है, रोटेशन यानी कि एक घूमा एक बार. ठीक है, तो वो हो गया हमारा, दैट इज अबाउट डे. तो अ डे फॉर अ प्लैनेट इज वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है, अराउंड इट्स एक्सिस. और अ ईयर इज वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन, क्योंकि प्लैनेट तो रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, तो अराउंड सन. ओके, सो लॉन्गेस्ट डे इज फॉर वीनस, दैट इज रफली ऑफ 240 प्लस डेज. और इंटरेस्टिंगली वीनस का जो ईयर है वो शॉर्टर होता है. 240 डेज की जब हम बात करें तो ये अर्थ डेज की बात करें, अर्थ के एक डे के बराबर, अब अर्थ के 240 डेज के बराबर होता है वीनस का एक डे. और उस वीनस का ईयर शॉर्टर होता है, वीनस का ईयर 225 डेज का ही होता है. वीनस रिवॉल्यूशन तो जल्दी कंप्लीट करता है पर रोटेशन करने में टाइम लगाता है, आलसी है रोटेशन में. तो वीनस को लगभग 240 डेज लगते हैं. मार्स इज वेरी सिमिलर टू अर्थ, तो मार्स का जो एक डे है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन अर्थ डे, यानी कि 1.03 डेज के आसपास ही होता है. और फॉर जुपिटर दिस इज इवन लेसर, 0.41 डेज के आसपास होता है. अगेन डे यानी कि अर्थ डे की बात कर रहे हैं हम. मरकरी के लिए दिस इज रफली 120 के आसपास का वैल्यू है. ओके, और यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं फॉर मून. सो वन डे ऑफ मून इज रफली ऑफ 29.5 अर्थ डेज. रफली एक मंथ के बराबर होता है, एक वन मंथ ऑन अर्थ के बराबर होता है मून का वन डे. देखिए मून में रफली 14 टू 15 डेज तक लगातार दिन रहेगा, फिर उसके बाद में रफली 14 टू 15 डेज तक नाइट आएगा. इफ़ यू कैन रिकॉल तो चंद्रयान मिशन के टाइम पे दिस वाज वेरी रिलेवेंट, कि जब चंद्रयान मिशन पे अपना प्रूव गया था ना, तो यहाँ पे वो चीज़ें मैटर कर जाती हैं, क्योंकि जब लगातार 14-15 डेज तक दिन रहता है तो ड्यूरिंग दैट डे टेम्परेचर कीप्स राइजिंग, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. और फिर 14-15 डेज तक नाइट होता है तो टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ रेलिवेंट. ओके, और इसीलिए मार्स पे जाना ज़्यादा फिजिबल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे वन डे का ही, जो जैसा अर्थ में सिस्टम है ठीक ठीक वैसा ही सिस्टम वहाँ पे भी है. तो टेम्परेचर बहुत डिप भी नहीं होता और बहुत अप भी नहीं होता इसी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? इंडस वैली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर येलो रिवर सिविलाइजेशन? आंसर इज मेसोपोटामिया. दैट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. मिसोपोटामियन नाम ही है मिसोपोटामियन, मिसो यानी कि मिडिल, पोटामियन यानी कि रिवर्स, मिडिल द रिवर्स, रिवर्स के बीच में. और दिस सिविलाइजेशन इज बेसिकली इन द प्रेजेंट डे इराक एंड सीरिया. Between the two rivers, one river is Tigris and other river is Euphrates. Euphrates and Tigris.
Next, the gig economy is best characterized by which of the following? Long-term permanent employment, prevalence of short-term contracts and freelance work, government-controlled manufacturing jobs, या फिर high levels of unionization. The answer is gig economy is basically in news because of gig workers. और गिग वर्कर्स हमारे सबसे पॉपुलर कौन है एट प्रेजेंट? डिलीवरी पार्टनर्स ऑन फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी एप्स. ठीक है, सो दीज आर गिग वर्कर्स. गिग वर्कर्स आर बेसिकली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांस वर्किंग. ऑप्शन बी. अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, तो इस बार फिर से एक कोई क्वेश्चन आ सकता है गिग इकोनॉमी पे, तो इसको तो समझ के चलना है. ओके, नेक्स्ट वन. हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट ओलंपिक मेडल्स इन द हिस्ट्री? उसैन बोल्ट, लरिसा लैटिनिना, माइकल फेल्प्स या फिर मार्क स्पिट्ज. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए. अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होगे गेम्स में तो पता होगा कि माइकल फेल्प्स होल्ड्स द रिकॉर्ड. ही हैज़ टोटल 28 मेडल्स. कोई दूसरा आसपास भी नहीं है. आउट ऑफ दिस 28 मेडल्स 23 आर गोल्ड एंड ही इज फ्रॉम यूएस and known for swimming. Marisa Latinina is at second with 18 medals, and out of these 18, 9 are gold. She is from USSR. Usain Bolt has 8 golds in total, and he is from Jamaica, known for track and field events. Marisa Latinina is a gymnast. ठीक है, ओके. अब एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इंडिया में कोई ऐसा एथलीट तो नहीं है जो जिसने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हो, बट इंडिया हैज़ इन टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स टोटल 41 मेडल्स इंडिया के पास हैं. आउट ऑफ दोज 41 मेडल्स 10 आर गोल्ड, 10 आर सिल्वर एंड 21 आर ब्रॉन्ज. 10 gold, 10 silver and 21 bronze for India. And out of these 41, most notably 11 medals are in men's hockey. और इसमें भी out of these 11 we have 8 gold medals हॉकी में. And out of these 8 gold medals, 6 gold medals are consecutive. ठीक है, सबसे स्पेशल बात जो है 6 gold medals are consecutive gold medals from 1928 to 1956. So this is all about India in Olympics. Next question. Who was the first woman to win the Academy Award Oscars for Best Director? The answer is Catherine Bigelow. And she won the award for the movie The Hurt Locker. Okay. Next question. Which is India's largest inland salt lake? Chilika Lake, Sambar Lake, Pangong Tso या फिर वेम्बनाड लेक? Inland, largest inland salt lake. The answer is Sambar Lake in Rajasthan. अब यहाँ पे एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लेक पे जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार कंफ्यूजन होता है उसमें. देखो, लेक हमारी कई टाइप्स की होती है. Some lakes are freshwater lakes which contain fresh water as the name suggests. Some lakes are salt lakes which contain obviously salt water. ठीक है, some lakes are brackish water. अब आई बिलीव तुमने सुना होगा कई बार ये नाम, बट पता नहीं होगा फर्क क्या है. ब्रैकिश लेक्स आर बेसिकली दोज लेक्स विच कंटेन सॉल्ट वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर. दोज आर कॉल्ड ब्रैकिश लेक्स. तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. वेम्बनाड लेक इज लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया. दिस इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, दिस इज अ ब्रैकिश लेक. ब्रैकिश यानी कि ए मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? रिवर से मिलेगा. सॉल्ट वाटर कहाँ से मिलेगा? सी से मिलेगा. या जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इनलैंड सॉल्ट लेक है, तो वहाँ पे तो सॉल्ट वाटर सी से तो नहीं मिला, बट येस इट ऑल्सो हैज. सांबर लेक में हमारे पास इनलैंड सॉल्ट लेक है.
ठीक है, तो फ्रेश वाटर के लिए, लेकिन रिवर का सोर्स चाहिए, कोई ऐसा पेरिनियल सोर्स चाहिए जहाँ से कि फ्रेश वाटर है कि नहीं। तो वेम्बनाड लेक इज अवर लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया एंड दैट इज अ ब्रैकिश वाटर लेक एंड दिस इज मोस्टली फेमस फॉर बोट रेसेस। तुमने मूवीज वगैरह में जहाँ पे भी बोट रेसेस देखा होगा, तो इन केरला, दिस इज इन केरला एंड फेमस फॉर बोट रेसेस। चिलिका लेक ऑल्सो कंटेन्स ब्रैकिश वाटर, तो फ्रेश वाटर भी है और साथ में सॉल्ट वाटर भी है, बिकॉज इट इज बेसिकली अ लैगून। चिलिका लेक एक लैगून है एंड मोर स्पेसिफिकली दिस इज अ कोस्टल लैगून, कोस्ट पे है। ठीक है, लैगून वो वाटर बॉडी होती है जो कि एक लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेटेड होता है ड्यू टू सम लैंडफॉर्म। तो किसी रॉक की वजह से या किसी वजह से, इफ दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर वाटर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल चिलिका लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर वाटर बॉडी, सी से सेपरेटेड है। ठीक है, तो इसमें फ्रेश वाटर भी है और सॉल्ट वाटर भी है, सो इट इज अ लैगून एंड कोस्टल लैगून है। इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है चिल्का लेक। तो क्या ये बातें समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सिमिलरली पैंगोंग सो के बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लद्दाख में है ये, और मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज ऑल्सो ब्रैकिश या फिर सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक है ये, सॉल्ट लेक है, हाँ श्योर हूँ, सॉल्ट लेक है इन लद्दाख। ठीक है, लार्जेस्ट हमारी सांबर में सांबर लेक होगी, इनलैंड सॉल्ट लेक। लेगून हमारा हो गया ब्रैकिश वाटर चिल्का लेक, और वेमनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया होगी, ब्रैकिश वाटर है, बोट रेसेस के लिए फेमस है, और बाकी हमने फ्रेश वाटर के लिए बात कर लिया, वूलर लेक JNK में। सिमिलरली गोविंद वल्लभ सागर लेक, ये तो सारी बात होगी हमारी नेचुरल लेक्स की। गोविंद वल्लभ सागर लेक तो नहीं कहेंगे, बट गोविंद वल्लभ सागर सागर, दिस इज मैन मेड लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक, एंड दिस इज इन यूपी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. The Nobel Peace Prize 2024 was awarded to which organization? World Food Program, Nihon Hidankyo, IAEA, या फिर Doctors Without Borders? The answer to this question is Nihon Hidankyo. This is organization in Japan, an organization of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki. And they won the Nobel Peace Prize because of their instrumental role in the efforts for a nuclear-free world. Okay. Next question. What is the current base year used by the government of India for calculating the GDP, gross domestic product? Answer is 2011-12. Earlier this was 2004-5. It was changed 2011-12 by Central Statistical Organization. Next question. Which country is widely recognized as the world's oldest continuous modern democracy? Answer is USA, United States of America, from 1789. Last question. Who is known as the father of local self-government in India? Lord Curzon, Lord Canning, Lord Mayo, या फिर Lord Ripon? Lord Ripon is known as father of local self-government, father of LSG, local self-government, from it, and this happened in 1882. Lord Mayo also had been that regard. So Lord Mayo का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1869 टू 1872. अब आयरनी है, जो आके राज किए मतलब वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, एनीवे, तो 1869 टू 1872 लॉर्ड मायो, एंड ही इज नोन फॉर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड कर्जन फ्रॉम 1899 टू 1905, एंड ही इज नोन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिकॉज दैट हैपेंड इन 1905, पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में। और लॉर्ड कैनिंग फ्रॉम 1858 टू 1865, 1865, during his tenure 3 modern universities were established in India, and those were established in Kolkata, Madras, and Bombay.
क्योंकि दिल्ली तो उसके बाद में स्टैब्लिश हुआ ना, तो कोलकाता, मद्रास, दिल्ली यानी कि प्रेजेंट दिल्ली, तो कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटीज, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ओके, क्लियर है? तो ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन सारे के सारे। अब बीच में एक क्वेश्चन जो छोड़ दिया था जिस पे डिस्कशन अब करेंगे, तो उस पर भी एक बार प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। लाइट के जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में एक डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सेशन को रैप अप करते हैं। So, sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. Because of which of the atmospheric phenomena? आंसर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द आंसर। अब एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन इज सिंपल, कोई लाइट की रे आई, ठीक है, पड़ी किसी आइटम पे, रिफ्लेक्शन क्या हुआ? पढ़ के रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज रिफ्लेक्शन, कि पढ़ के टक से वापस हो गया, डायरेक्शन उसका चेंज हो गया और पलट गई, ठीक है। तो जब पलट गई तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझेंगे, दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? बेंडिंग होगा। रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग, दिस इज बेंडिंग, कि मुड़ गई, पलटी नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ ऐसा कि एंगल चेंज हो गया, तो दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि पहले एंगल कुछ और था, अब एंगल थोड़ा बदल गया, ठीक है, पहले ये एंगल था, अब एंगल थोड़ा छोटा हो गया, तो एंगल पे फर्क पड़ा, दैट इज रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा क्या है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे 2 मिनट हमें एक्स्ट्रा, यानी कि डे का जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट से इलोंगेट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या फर्क है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, अब उसके अंदर वो रे चली गई, अब अंदर जाने के बाद में बेचारी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो रहा है, उस रे का। अब उसकी वजह से जब हम बाहर से उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट शाइन करेगा, सो दैट इज वाई द शाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डायमंड के लिए, तो डायमंड का जो शाइनिंग है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, कि एक रे अंदर गई बट वो बेचारी फिर बाहर नहीं निकल पाई, अंदर ही अंदर वो कैद हो गई और रिफ्लेक्ट होती जा रही है बस वो, तो उसकी वजह से शाइन कर रहा है डायमंड, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ? जैसे कि डायमंड का शाइनिंग होगा, तो डायमंड के शाइन होने के पीछे का रीजन है दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई पेन अगर कभी ग्लास में डालोगे, पानी के ग्लास में, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो वहाँ देख पाते होगे कि वहाँ पे तुम्हारा पेन का एंगल चेंज हो जाता है, वो भी होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, कि तुम्हारा पेन तुम्हें टिल्टेड लगता है कि यहाँ से जैसे टूट गया हो, कि जो पार्ट वाटर बॉडी के अंदर है वो अलग एंगल पे है और जो ऊपर है वो अलग एंगल पे दिख रहा है, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं स्कैटरिंग की और डिस्पर्जन की, बट उससे पहले शॉर्ट में एक बात और समझ लेते हैं। विबग्योर, जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, वहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है रेड का। वॉयलेट से कम जो हमें, ये तो हो गया पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है हमको, ठीक है। इससे पहले होता है यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, और रेड के बाद हुआ इंफ्रारेड, जो हमें विजिबल नहीं है कि नहीं? विजिबल नहीं है बट काम आता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेड की रेस की अभी हमने बात की थी ओजोन लेयर डिप्लीशन के टाइम पे, कि अल्ट्रावायलेट रेस के साथ में ही हमारा CFC रिएक्ट करता है और उसके बाद में ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओके। तो यूवी रेज हो गई, आई और इंफ्रारेड रेज हो गई हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड रेज पे काम करता है। अगर कभी ऑब्जर्व करना हो तो मोबाइल या कैमरा लेके और फिर जब रिमोट कंट्रोल को मोबाइल के डायरेक्शन में रख के और फिर करके देखना, ठीक है। तो मतलब कि रिमोट कंट्रोल पे कोई बटन प्रेस करके देखना, तो हमारा मोबाइल इंफ्रारेड रेज को कैप्चर कर पाता है, दैट इज वाई, यानी कि सबको तो नहीं बट एक विजिबल स्पेक्ट्रम से थोड़ा ज़्यादा कैप्चर कर पाता है मोबाइल, दैट इज वाई वो रेस तुमको दिख जाएंगी मोबाइल में, बट ऐसे तुम्हें नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तो गया इंफ्रारेड रेस की बात और यूवी रेस की बात, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हुआ वॉयलेट का, और जैसे जैसे हम आगे विबग्योर में आगे बढ़ते जाएंगे फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, वैसे वैसे हमारा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विजिबल रेज, जो हमारी विजिबल जो लाइट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें कलर कौन सा दिखता है? सबसे ज़्यादा कलर दिखते हैं हमें जो विजिबल लाइट में सेंट्रल में आते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन। इनके सबसे ज़्यादा शेड्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्लू और ग्रीन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक पॉपुलर साइंटिस्ट का नाम क्या है? दैट इज रमन इफेक्ट, प्रोफेसर CV रमन, द ओनली फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है। एंड दिस इज स्पेशली रेलेवेंट बिकॉज अभी 4-5 दिन पहले का न्यूज है कि इलॉन मस्क नेम्ड हिज चाइल्ड स्ट्राइडर शेखर, स्ट्राइडर शेखर, एंड दिस शेखर पार्ट इज फ्रॉम द नेम ऑफ CV रमन ओनली, चंद्रशेखर वेंकट रमन
के नाम से ही शेखर पार्ट लिया है, तो शेखर दिस ही नेम्ड हिज चाइल्ड ऑन सीवी रमन, एंड स्ट्राइडर पार्ट इज बिकॉज ऑफ a character Aragorn from Lord of the Rings. ओके, तो सीवी रमन इज नोन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमें क्या दिखता है, हमें स्काई ब्लू दिखता है। तो स्काई का जो ब्लू कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जिस कलर का वेवलेंथ जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्कैटर होता है, दैट इज वाई स्काई हमें ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ डेफिनेटली रेड और ऑरेंज, येलो, ग्रीन इन सबसे कम है, तो उतना ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू उतना ज़्यादा फैलता है, दैट इज वाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज की वजह से हमें ब्लू दिखता है स्काई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्काई क्यों ब्लू दिखता है, तो ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है, क्योंकि अभी एक्सप्लेन कर ही रहे हैं तो इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये भी दिमाग में आ सकता है कि फिर हमें स्काई वॉयलेट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ उससे भी कम है, बिकॉज हमारी आईज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू और ग्रीन के लिए, इसलिए ये बात हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, कि ब्लू और ग्रीन के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है, वॉयलेट नहीं दिखता है। इसके अलावा जो वॉयलेट रेज भी हैं सन से वो उतना ज़्यादा नहीं आती है, मोस्टली ब्लू ग्रीन और ये सब ही ज़्यादा रेज आती हैं। ठीक है, तो वॉयलेट रेज भी उतना ज़्यादा नहीं कैप्चर हो पाता, तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न। ठीक है, फिर लास्ट में बच गया हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन डिस्पर्जन इज द फिनोमेना जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है, या फिर जिसकी वजह से हमें, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिज्म लिया तुमने, प्रिज्म में लाइट की एक बीम डालोगे तो अल्टीमेटली उससे क्या है, अलग सारे के सारे कलर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, अलग दिखेंगे, रेनबो जैसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये सारे के सारे फिनोमेना हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन वर्सेज रिफ्रैक्शन, TIR टोटल रिफ्लेक्शन और साथ में डिस्पर्जन, इनको डिस्कस कर लिया। और इनके बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उससे बाहर नहीं आएगा, तो हमने सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली। आई बिलीव जो भी कुछ इस सेशन में डिस्कस किया है वो सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।